Children, today in this video I will tell you about the another alternative source of energy, and that is wind energy. So the energy obtained from the wind is called as wind energy, and this wind energy can be converted into electrical energy using wind turbines or windmills. You can see these are the windmills and these are the turbines. Then wind farm. Wind farm is a group of wind turbines in the same location used for the production of energy. Children, this is a wind farm. Here you can see all these windmills present here. All these are required for converting the wind energy into electrical energy. And this entire area where various windmills are present, and that area is called as wind farm. So a large wind farm may consist of several hundred individual wind turbines. Now wind farm projects occurring in India, it occurs in various states like Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and other states. Let us see what is wind power generation. Wind power generation means getting the electrical energy by converting wind energy into rotating energy of the blades and converting the rotating energy into the electrical energy by the generator. So this is how the wind power works. Now let's see the advantages of wind energy. Wind energy doesn't consumes any fuel, doesn't requires any fuel, and it emits no air pollution. Therefore, it is an eco-friendly source of energy. Another advantage is it reduces the dependence on fossil fuels, therefore it saves fossil fuels. Now disadvantages of wind energy are: wind farm needs large area for installation. Along with this, fast moving wind can help in generating the electrical energy. Hence these wind farms, or we can say windmills, cannot be set up at all places. Now another important thing is that the disadvantage is that it may use the valuable agricultural land, means the land which can be used for agriculture purpose can be converted into a wind farm. And the last one is birds and bats mortality increases. Why mortality increases? Because of the presence of these turbines. If any birds or bat move and the turbine comes in between, their death rate increases. Mortality means death rate. So let me tell you what I have explained you here in this video. मैंने आपको बताया कि विंड एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो विंड से मिलती है और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर दिया जा सकता है. कैसे कन्वर्ट किया जाता है? विंड टर्बाइंस को या विंड मिल्स को यूज़ करके. अब विंड फार्म क्या होता है? विंड फार्म एक ऐसा एरिया है जहाँ पर विंड टर्बाइंस प्रेजेंट होते हैं एक ही लोकेशन पर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. ये देख रहे हैं, ये सब क्या है? विंड मिल्स और टर्बाइंस. अब एक लार्ज विंड फार्म में सेवरल हंड्रेड इंडिविजुअल विंड टर्बाइंस प्रेजेंट हो सकते हैं और बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया में विंड फार्म प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है और दूसरे स्टेट्स में. अब देखते हैं कि ये विंड पावर जनरेशन होता क्या है, एक्चुअली में क्या हो रहा है. ये जो विंड पावर जनरेशन है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है. किससे मिल रही है? विंड एनर्जी को कन्वर्ट करके. होता क्या है? इस विंड एनर्जी को सबसे पहले तो ब्लेड्स की रोटेटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद इस रोटेटिंग एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर. यही होता है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन फ्रॉम विंड एनर्जी. अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं. विंड एनर्जी के लिए किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती. इसकी वजह से कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता. ये एक इको फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है और इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स भी सेव होते हैं. हमारा जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे, वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी की. डिसएडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो विंड फार्म के लिए हमें एक बड़ा एरिया चाहिए उनको विंड टर्बाइंस को इंस्टॉल करने के लिए. उसके साथ साथ फास्ट मूविंग विंड की ज़रूरत पड़ती है. तो ऐसा नहीं होता कि हर जगह फास्ट मूविंग विंड्स हों और हमेशा हों, तो इसलिए ये सारी लोकेशंस पर नहीं बनाया जा सकता है. उसके बाद कोई एग्रीकल्चरल लैंड को अगर हम विंड फार्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो भी एक हमारा डिसएडवांटेज हो जाएगा.
और लास्ट पॉइंट क्या हो जाता है कि इस विंड फार्म के विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस की वजह से क्या होता है कि बर्ड्स और बैट्स का जो डेथ रेट है, जो मोर्टालिटी है, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि ये जो विंड टर्बाइंस होते हैं ये रोटेट करते हैं, और इनके रोटेट करने की वजह से अगर रास्ते में कोई भी बर्ड या बैट फ्लाई करते हुए यहाँ बीच में आ जाता है तो वो इसके ब्लेड से कट करके उसकी डेथ हो सकती है। तो दैट इज़ वाई वी से कि बर्ड्स और बैट्स की मोर्टालिटी जो है इसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है। सो दैट्स ऑल अबाउट द विंड एनर्जी। थैंक यू।